السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حسن اخلاق شروع کرتے ہیں۔ تو حسن اخلاق میں ہم نے کرنا ہے الغضب۔ تو پہلے دعائیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم رب اللہ۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ربنا علم اللهم فقهنا في الدين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم يا الله مدد۔ انشاءاللہ تعالی غصہ حسن اخلاق ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت مبارک مہینے میں۔ جی یہ کلاس بہت مبارک مہینے میں ہو رہی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا جی دونوں ہی اسی مہینے میں ہی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انشاءاللہ جانیں گے۔ تو اس کو ہم کرتے ہیں بعد میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ہم کہتے ہیں غصہ۔ غصہ کیا چیز ہے؟ اینگر، الغضب۔ ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب، غیر المغضوب، جن پر غضب کیا گیا، غضب ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی، ان لوگوں میں سے ہمیں نہ کرنا۔ تو یہ غضب جو ہے، غصہ جو ہے، یہ غصے کے لیے بھی جب ہم غصے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ویسے بھی کوئی غصے سے بہت برا کسی کے ساتھ سلوک کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ غضب، قہر و غضب جو ہے ٹپک رہا ہے اس کی باتوں سے اور نا جی اس کے کاموں سے بھی، تو وہ استعمال ہم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اردو کا بھی لفظ ہے، غضب و غصہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ غصے کے ساتھ ہی غضب کا بھی، یعنی کہ غصے کی وہ حالت جو ہم اپنے اردو میں کس طرح لیتے ہیں غصے کو۔ ایک تو ہے غصہ، عام طور پر میں اردو کی بات کر رہی ہوں، ایک ہے غصہ ہے نا، ایک ہے ہم کہتے ہیں یعنی غصے کی شدت والی حالت جو ہے اس کو ہم غضب کہتے ہیں اردو میں، ایسے ہی ہے نا۔ جی جب شدید غصہ آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں غصے کی، یعنی کہ غضب ٹپک رہا ہے اس کی باتوں سے، جا قہر و غضب ڈا رہا ہے کسی پر، ہے نا، اتنا وہ کر رہا ہو تو یہ غصہ۔ اینگر، انگلش کا لفظ اینگر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں اسے قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر غصہ آ جائے تو گزر کر جاتے ہیں کون؟ یہ عباد الرحمن ہے، اللہ کے بندے جو ہیں، مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر انہیں غصہ آ جاتا ہے نا تو وہ درگزر کر جاتے ہیں، وہ خود صبر کا کہتے ہیں، جو کیونکہ غصہ کس چیز پر آتا ہے؟ آگے والا ورگلا رہا ہوتا ہے، جی آگے والا جو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ ورگلا رہا ہوتا ہے ہمیں، تو ہمیں پھر غصہ آتا ہے۔ تو غصے میں پھر ہم آگے بہت کچھ کرتے ہیں،
तो उस वक़्त वो गुस्सा यानी पी जाते हैं वो वर्गलाने पर गुस्से में नहीं आ जाते, बल्कि दरगुज़र कर जाते हैं, सब्र कर जाते हैं। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो ये क्या हर बंदा कर सकता है? बहुत मुश्किल होता है करना। बहुत मुश्किल होता। ख़ासकर जब आगे वाला बंदा जो है आपको इतना तंग कर रहा हो। हुँ? जी, आगे वाला बंदा पूरी हद्दुल मक़दूर कोशिश कर रहा हो कि आपको वो नुकसान पहुँचाए या आपको और गुस्सा दिलाए, है ना? तो जी, फिर आप कहते हैं इतना यानी कि गुस्से में आके शैतान सी की तरफ से है ना, गुस्सा शैतान की तरफ से है। जी, जी। गुस्सा शैतान की तरफ से है और वो शैतान तो फिर जब आ जाता है तो क्या होता है, वो तो तबाही मचाएगा, वो कुछ और तो नहीं करेगा, प्यार तो नहीं करेगा ना। जी, जी, वो तो शैतान का मामलात को बिगाड़ेगा ही ना। तो इंशाअल्लाह ताला तो आप सबको पता है कि जब गुस्सा आता है, हमें भी आता है, हर बंदे को आता है, हर बंदे की तरफ आता है। कोई बंदा नहीं कहता कि मुझे कभी गुस्सा आया ही नहीं है। जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुँ? कभी कोई बहन भी दावा करेगी कि मुझे कभी कोई गुस्सा नहीं आया, मुझे तो बस हर वक़्त ही मैं तो सब्र ही करती हूँ और हर वक़्त ही मैं तो बस स्माइल ही करती रहती हूँ। कभी ऐसा होता है? नहीं, नहीं, ऐसा कहाँ होता है। हुँ। कैसे दूसरी बहनें भी बोलें, आप कभी ऐसा करते हैं? हुँ? नहीं बाजी ऐसा कहाँ होता है। कहाँ होता है, जब गुस्सा आता है फिर तो हम लाल पीले हो जाते हैं ना। जी, सिर्फ लेकिन बाज़ अल्लाह औक़ात त होता है ना कि जब हम कोई झूठ बोल रहा है, गुस्सा दिला रहा फिर है, हाँ, उसमें आप इस वजह से भी खामोश हो जाते हो कि चलो जी, मैं इसके साथ पूरी नहीं आ सकती। तो हाँ, कई उसमें क्या दफ़ा हमें हाँ, हाँ। खामोश होना चाहिए? हुँ। एक गलत बात कोई कर रहा है तो उस पे भी वो या झूठ गलत बोल बात कर रहा है तो उसको ये है कि बता दें ये गलत है और फिर खामोश हो जाएँ। मेरे ख़्याल में जब बताएँ तो फिर उससे ना वो ज़्यादा काम ख़राब होता है। का काम खराब होता है। लेकिन उसको ये समझा दिया जाए कि ये बात ऐसी है, ना हुँ, उसको ये बताया जाए कि गलत है बिल्कुल। गलत हुँ, का मतलब क्या उसको समझाया जाए कि ये बात ऐसी थी, हुँ, है ना? सही। तो मुझे यही समझ आई है कि ये बात ऐसी थी और फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। अगर वो नहीं मानता, वो अब और भी गुस्से में हो आ रहा है, तो फिर उसे ये बात साथ में कह दिया जाए कि ठीक है, आपका ये ख़्याल है या जो भी है, जिस तरह भी हो, अब डिपेंड करता है बात क्या है, जी, सिचुएशन जी। कैसी है ना? जी। तो ये आपका ख़्याल है, आपके ख़्याल में ये बात ऐसी है, लेकिन मैंने ये सुना है या मैंने ये देखा है या मैं ये मेरे ख़्याल में ये बात ऐसी नहीं है सही, ना? और फिर ये आगे आपकी मर्ज़ी है, मैंने जो बताना था आपको सच वो बता दिया। जनी जो मैंने बताना था, जो मुझे पता है और ये मैंने देखा है, तो क्या है कि ज़ाहिर है आँखों से देखा तो सच ही होता है ना? सही, सही। है ना? सिस्टर कुछ लोग ना ऐसे होता है कि एक दिन कोई बात की है तो नेक्स्ट डे उसको ना चेंज करके तो वो इस तरह वो से तो लोग आएँगे, आपकी ज़िंदगी में वो लोग आएँगे, मैं आपको उस उनसे जगह पे सब्र ना करना पड़ेगा। खामोशी इख्तियार करती हूँ कि अब हाँ, वो 1 ही दिन अच्छी पहले की बात है। बात है तो ये तो जानबूझ के ऐसे हो रहा है ना, तो मैं बस खामोशी इख्तियार करती हूँ कि उसमें उसको क्या मेंशन करना कि कल तुम ये कह रही थी और आज तुम ये कह रही हो। हाँ, ये है। तो वो जब ऐसे बंदे हों, तो वो उनको फिर ये है कि खामोशी इख्तियार की जाए, उनसे सब्र ही किया जाए, दरगुज़र अल्लाह ताला फरमाते हैं दरगुज़र कर जाते हैं, मोमिन जी, दरगुज़र करता है। मोमिन फिर उनकी बातों में आकर वर्गलाने पर ऐसा नहीं होता। वो हमें याद ही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे और किसी ने अल्लाह के दीन को इतना बुरा भला कोई किसी ने कहा और कोई कह रहा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सुनते जा रहे थे और यूं ही अब कुछ कोई उसने ऐसी बात कही कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसका जवाब दे दिया। जो ही जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, इतनी बातें कह रहे थे, शायद अल्लाह के नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बारे में नहीं बर्दाश्त करते थे। हुँ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद ज़ात के बारे में कहते होंगे। तो वो कुछ जो कुछ कह रहा था, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور غصے میں آئے اور یعنی کہ چہرہ بدل گیا اور وہاں سے چل دیے جی نا، وہاں سے چل دیے، یعنی کہ آثار اچھے نہیں نظر آئے کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی یہ بات صحیح، کہ انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں پیچھے اور وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ بندہ اتنا برا بلا کہہ رہا تھا آپ خاموش تھے اور مسکرا رہے تھے، یوں ہی میں نے جواب دیا، آپ چل دیے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ جواب نہیں دے رہے تھے اس کی باتوں کا، فرشتہ جواب دے رہا تھا، اس کی صحیح، باتوں کا آپ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن یوں ہی آپ نے جواب دیا، آپ نے اپنا بدلہ لے لیا، کہ وہ بدلہ نہیں لے رہے تھے نا، جی فرشتہ ان کی طرف سے پھر کر رہا تھا وہ کام۔ تو یوں ہی آپ نے جواب دیا، فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، کیونکہ شیطان آتا ہے جب یہ ایسے بدلے لیے جاتے ہیں نا۔ صحیح، تو شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں میرا کیا کام، یعنی کہ اللہ کے نبی کا پھر کیا کام ہے جہاں شیطان موجود ہو۔ تو اس لیے تو پھر یہ ہے کہ حکمت یہی ہوتی ہے کہ اگر آگے والا بندہ اگر بدلتا رہے باتوں کو، تو وہ ایک بار اسے حق اور سچ ضرور بتا دیا جائے، ٹھیک، ٹھیک ہے، حق اور سچ ضرور بتا دیا جائے، کیونکہ اگر آپ بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کو ہو سکتا ہے وہ سوچ بھی نہ سک رہا ہو کہ یہ ٹھیک بات ہے جو میں اپ اینڈ ڈاؤن کرتی رہتی ہوں ہر وقت، ہے نا، کہ میں ہر وقت ورگلاتی ہوں دوسروں کو اور جھوٹ بولتی ہوں، اور کیونکہ ایک جھوٹ بولتا ہے بندہ 100 اس کے اوپر اور بولنے پڑتے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ہے نا، ہم نے سنا ہی ہوا ہے محاورہ، کیونکہ جو سچ ہوتا ہے 100 سال 200 سال صدیوں بعد بھی بات ہو تو وہ سچ سچ ہی ہوتا ہے، وہی بات ہوتی ہے، لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے وہ ہر وقت بدلتا ہے، کیونکہ جھوٹ کے ظاہر ہے کہ وہ تھا تو نہیں کچھ، اب وہ بنا کے بتائی تو بنائی بنائی بات جو ہوتی ہے وہ آپ اور طریقے سے پھر بنا سکتے ہیں، لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، وہ بالکل پکچرائز ہو رہا ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھا تھا، جو آپ نے جو ہوا تھا، ہے نا، تو وہ بالکل آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ میں باتیں دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کیونکہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ اور گڑیں گے نا، پھر ہر بار بدلیں گے جھوٹ کو۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ کو یہی پسند ہے، بس یہ کہہ لے، ادھر بھی کیا یہی ہے نا، اب ذرا ڈفرنٹ وے بات کر دی ہے، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں غصے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں، تو وہ درگزر کرنا پی جانا ہی ہے نا، خاموش ہو جانا، جیسے جی آپ نے کہا کہ خاموش ہو جاتے ہیں، ہے نا، جی تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، جو بھی اب یہ ہے کہ انسان دل میں نہ لائے جائے، اب پتا ہو کہ ایک انسان ایسا ہی ہے تو بس اس کے بارے میں دل صاف کر لیں کہ بس اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، صحیح، ایسے اس تو کے باقی بارے بڑا بات کام ہوتا ہے، ہے، لیکن ہوتا تو واقعی مشکل کام ہے کہ دل سے ہاں، بات نکلتی نہیں ہے، ہوں، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے کہ قصور معاف کر دو۔ قصور معاف کر دو، قصور معاف کر دو، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دیکھو دونوں آیتوں میں کیا ہے، یہی تو ہے، جی درگزر کرنا باقی ایک کیا ہے، بات قصور کو پوچھوں معاف کرنا ہی جی ہے نا، تو معاف کر دیا جائے، لیکن باقی ایک بات مشکل پوچھوں واقعہ ہی بہت ہے، جی میں ایک بات پوچھوں، جی مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ ہم غصے کو چلو پی جاتے ہیں ایک ٹائم پہ، لیکن جب ہم معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں دوبارہ وہ سب بات یاد آ جاتی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ اس طرح کرا، تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے کہ وہی ہے نا، اگر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کا ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، بس میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، غصہ درگزر کیوں کرنا ہے، اللہ کے لیے، قصوروں کو معاف کیوں کرنا ہے، اللہ کے لیے، غصے کو کیوں پینا ہے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، جب سب کچھ اللہ کے لیے کیا جائے نا
सब कुछ जी अल्लाह के लिए। तो ज़हन में होता है कि मुझे तो अल्लाह की रज़ा चाहिए, मुझे तो वो जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह का दीदार चाहिए। तो जब इतना बड़ा गोल हो तो वो छोटे गोल जो है वो ऑटोमैटिकली हिज हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं ऑटोमैटिकली जब गोल ऊपर हो तो। लेकिन बाजी अगर वो बात याद आ जाए कि इस शख्स ने वो याद आ जाए मतलब अल्लाह के अल्लाह नबी की सल्लल्लाहु मतलब अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं बताती हूँ कि जो जिसने वाहशी ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल किया था ना, और बहुत बेदर्दी से कत्ल किया था जंग में, जंग के दौरान, है ना? हम्म जनी के टुकड़े किए थे, दिल के और दिल भी निकाला था शायद, क्योंकि वो हिंद ने मांगा था ना, तो हिंद ने मांगा था ना, तो इसलिए, क्योंकि हिंद का बाप या भाई कोई मेरे अब जहन में नहीं है, जिसको कत्ल हुआ था जंगे बदर में, तो उसने बदला लेने के लिए अपने अपना गुलाम जो वाहशी था, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था, वाहशी बहुत बाद में मुसलमान हुआ, हबशी गुलाम था, तो उसको उसने कहा था, और वो जनी के साथ जंग में उसमें गई भी थी, जंगे उहुद में शायद था, जंगे उहुद में ही था। तो उसने कहा था कि हमज़ा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसका दिल लाना, मैं उसे खुद अपने दाँतों से चबाऊँगी। हम्म यानी कि इतनी नफ़रत के साथ उसने कहा था कत्ल करने के लिए। तो जे आपको पता है ना, मुसला नहीं किया जाता ना, मुसलमान का मुसला नहीं किया जाता, किसी का भी नहीं मुसला किया जाता। मुसला क्या होता है, जिस्म के एक-एक हिस्से को काट देना, अलग कर देना। जी जिस्म के हिस्सों को अलग कर देना, तो ये नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर गुस्सा भी है, उसको आपने कत्ल तो कर दिया, उसकी जान ले ली, तो और क्या बाकी है? हम्म इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत कि उसके जिस्म के एक-एक हिस्से को काट दिया जाए, हम्म है ना? तो ये फिर नफ़रत की इंतहा नहीं होती। नफ़रत जितनी बढ़ाओ बढ़ती जाती है। तो वहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वहशी भी मुसलमान हो गया था, तो हिंद भी मुसलमान हो गई थी बाद में। हम्म, आपको पता है, हिंद भी मुसलमान हो गई थी, जी वाशी भी मुसलमान हो गया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद से यही क्या कहा था, वाशी से, कि भी वो मेरे सामने ना आए, बस मेरे सामने ना आए। जब वो सामने आता है तो हम्म मुझे मेरा चाचा हमजा याद आ जाता है, जी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हमजा से बहुत प्यार करते थे, और हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु वैसे भी रज़ाई भाई भी थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यानी कि हजरत हलीमा, यानी हजरत हलीमा नहीं, एक माँ का ही उन्होंने दूध पिया हुआ था, एक माँ का दूध पिया था, तो इसलिए वो रज़ाई भाई भी थे, और बहुत प्यार करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से। तो वो भूल नहीं पाते थे, वो सुनी नजर आ जाता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इसने ऐसा किया था। तो जाहिर है वो हिंद को भी, तो हिंद को अभी फिर नजर आता था कि हिंद जब सामने आती थी, तो फिर उनको कहा था, मेरा ख्याल मुझे पक्का याद नहीं है अब, उनको कहा गया था कि मेरे सामने ना आए। तो आप ये तो नहीं कह सकते किसी को कि क्योंकि कोई ऐसा शख्स है वो तो और दुश्मनी कर लेगा, है ना? वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये है कि लोग सुनते भी थे ना बात, उनको पता भी था, है ना? लेकिन अब हमारा ईमान वो नहीं है, आज हम कहेंगे तो हमारे लोग कैसा सुन सकते हैं ऐसी बात को? नहीं सिस्टर। वो तो कहेंगे ये इसकी नफ़रत की इंतहा है कि ये मुझे कहती है कि मेरे सामने ना आना, है ना? जी हम्म तो इसलिए नहीं कि वो आपके ईमान को बचाना चाहते हैं, या आपके यानी कि गुस्सा ना आए, तो लेकिन वो इसलिए कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना बड़ा तो नहीं होता कि किसी ने कत्ल किया हो, मुझे ये बताइए, है ना? जी जी हाँ इतना बड़ा एक तो नहीं होता बातें ही होते हैं ना, बातों के घाव, मुझे पता है कि कहते हैं ना जी कि वो कहावत है कि बातों के घाव नहीं भरते, तलवार के घाव भर जाते हैं, है ना? तो बातों के घाव हमेशा रहते हैं, वो घाव रहेंगे, क्योंकि निशान, जख्म जो है जाता है, निशान छोड़ जाता है ना। सिस्टर, जब आप जख ईमान ताज़ा करते रहते हैं ना, इस तरह की चीज़ें सुनते पढ़ते हैं, तो हाँ, वो बंदा जब सामने आता है तो आप फिर अपने ज़हन में इस चीज़ को रखते हो कि मैंने अल्लाह के लिए ना माफ़ किया। हाँ, ये उसी वक़्त जब भी वो बंदा सामने आए, "ऐ अल्लाह मेरी मदद, ऐ अल्लाह मेरी मदद, ऐ जी, अल्लाह मेरी बिल्कुल। मदद", है ना? तो बाज़ ऐ औक़ात होता है कि जब वो ज़्यादा अरसा गुज़र जाए,
پھر کسی کے سامنے آپ بات کرتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کرتے ہو، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، پھر میں دوبارہ سے معافی مانگ لیتی ہوں کہ میں نے تو معاف کیا ہوا تھا، تو پھر یاد ہاں کر وہ تو انسان ہے نا، پھر کیا کر سکتے ہیں. کبھی وہ ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جی جن کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں. کبھی ایسا موقع آتا ہے فوراً زبان سے نکل جاتی ہے بات، ہم بھی شیطان کے ورگلانے پر آ جاتے ہیں ہاں اور جی باتوں میں، اور وہ زبان سے نکل جاتی ہے. تو پھر اللہ سے معافی ہی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ بار بار آئے. اللہ کو پتا ہے میرا بندہ بھول جاتا ہے. غلطی کرے گا، ہے جی نا، بالکل. اللہ کو پتا ہے میرا بندہ بار بار غلطی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پھر آگے جان بوجھ کر نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے آگے پھر انسان بس معافی. اللہ معافی مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے تو تیرے لیے معاف کیا تھا، پھر میں بہک گئی. جی اللہ بالکل. تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو انسان جی نہیں سکتا اگر کسی کو معاف نہ کرے، تو اس کا جینا صحیح دوبر ہو جاتا ہے. کوئی انسانوں نے اتنا دکھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ اس کا سایہ بھی نہ میری زندگی پر پڑے نا، صحیح. کیونکہ جی انسانوں نے اتنا تکلیف دی ہوتی ہے. خاص کر ہم جاتے ہیں، جب عورتیں ہیں سسرالی رشتوں میں جاتی ہیں، تو کئی دفعہ تو دکھوں اور تکلیفوں کے انبار اور پہاڑ گر جاتے ہیں ایک عورت پر. تو اور دوسری طرف کئی دفعہ وہ گھر والوں پر پہاڑ گر جاتے ہیں. ایسی ظالم عورت آ جاتی ہے، جی سب وہ صحیح. ٹکڑے کر دیتی ہے خاندانوں کے. ہم، جو خاندان صدیوں سے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے بکھیر دیتی ہے، ایک ایک فرد کو علیحدہ دوسرے سے کر دیتی ہے. جی ایسی عورتیں بھی آتی ہیں خاندانوں میں، جی بالکل. آتی ہیں جو کہ خاندانوں کو بکھیر دیتی ہیں. ان کا وہ کہتے ہیں نا شرازہ، اس کا تو شرازہ ہی بکھر گیا. تو اس طرح انسان بھی ہوتے ہیں، زندگیوں میں آتے ہیں. اور کئی دفعہ ساسیں، نندیں، دیور، جیٹھ، سسر، ہے نا، ان کی طرف سے انسان اتنا تکلیف میں ہوتا ہے. تو کبھی وہ وقت گزر تو جاتا ہی ہے، کبھی وہ بھی پھر انسان اسی عورت کے انڈر آئے ہوتے ہیں، ہے نا. تو انسان اپنا نہ بھولے، اپنی جو بڑھاپا ہے نا اس کو نہ بھولے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہی انسانوں کے ہاتھوں میں اب جاؤں پھر، ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تو ان کے ہاتھوں میں جائیں گے، تو اگر خدا کا خوف انہیں بھی نہ ہوا تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے اس کے ساتھ سلوک، جی ہے نا. صحیح بات ہے تو جی. اس لیے وہ بدلہ اپنا پورا لے لیں گے. اور اگر اللہ کا خوف رکھنے والے ہوئے، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوئے، تو درگزر کر جائیں گے، جی ہے نا، درگزر کر جائیں گے. ہم، تو ایسا ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو دکھاتے ہیں، ٹائم دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اب ویسے بھی ماں باپ کی نافرمانی کی ہوئی، ماں باپ کے ساتھ تکلیف ماں باپ کو دی ہوئی، چاہے وہ شوہر کے ماں باپ ہوں یا اپنے ماں باپ ہوں، وہ زندگی میں اپنے سامنے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا، وہ دنیا میں ہی اس کے بچوں کے ذریعے اسے دکھا دیتا ہے. یعنی وہ پورا آخرت میں تو ہے، آخرت میں بھی اسے کیے کا سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا جی. اور کتنے ہی بدقسمت انسان ہمارے پاکستان میں جو بیویوں کے پیچھے لگ کے ماؤں کو، بوڑھی ماؤں کو در بدر ٹھوکریں کھانے پر چھوڑ دیتے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں. جنہوں نے وہ جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں، جنہوں نے وہ گھر بنائے ہوتے ہیں، انہی کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. یہ سب سے دکھ کی بات ہے، انہی کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. اور دیکھیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جیسے ہمارے جہاں پہ ہے، جب بچہ نہیں رہنا چاہتا، بہو نہیں رہنا چاہتی ساتھ میں، تو کیا کہتے ہیں، جاؤ اور اپنا لے لو جا کے، پھر یہی کہتے ہیں نا. تو وہ جا کے اپنا گھر لے لیتے ہیں، یعنی وہ خود اپنا انتظام کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنا انتظام کیا. تو پھر یہ ہے کہ کیونکہ جب بھی کچھ تھی تو نہ ہمارے گھر ہوتے ہیں نہ ان کے ہوتے ہیں، ہے نا. وہ کہہ نہیں سکتے کہ تم زیادہ جائیداد ہے تو آپ نے مجھے کیوں کہا. تو وہ بھی باپ کی جب ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے باپ کی ہے، ماں باپ کی ہے.
तो उन्हें भी फिर यही फिर होना चाहिए कि जाओ और अपना घर खुद बनाओ और खुद वो सफर करो, आपको पता चले। नहीं रहना चाहते तो जाओ, खुद बनाओ। क्यों माँ-बाप ने छोड़ना है घर बूढ़े बुढ़ापे में? हमारी फैमिली में ही ऐसा हो रहा है कि एक बूढ़ी माँ जिसने सारी उम्र उन बच्चों पे गुज़ारी और अब वो बहू भी बहन की बेटी और ऐसी ज़बरदस्त है कि उसने सास बेचारी को एक बुढ़ापे में बेटियों के दरों पे बिठा दिया जाके उसे, बेटी के घर में रहती है। और वो ना उससे अब सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, ना सीढ़ियाँ उतरी क्योंकि बेटी ऊपर की जगह पे रहती है। और अपना घर जो है वो कभी बेटा बेचारा इतना मजबूर है कि जब भी वो लेके जाना चाहता है, कभी बहाने से उसे माँ को लेके जाता है, वो कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के खूब लड़ाई झगड़े करके उसे फिर निकलने पर मजबूर कर देती है, फिर वो वापस आ जाती है। कभी कोई ईद पे ही वो जाती थी बेचारी, तो वो ईद पे भी नहीं अब, क्योंकि वो पहले ही उसने कोई ना कोई हंगामा खड़ा करके शोहर को खूब वर्गलाया होता है और वो फिर डरता ही लेने नहीं आता माँ को। तो ये है हालात है हमारे पाकिस्तान के हालात मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान के हालात। हमारे जहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन ये है कि जहाँ पे बहुत हद तक क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि 90% तक माँ-बाप कहते हैं जाओ अपना घर ले लो, या उन्हें ले देते हैं अगर पैसे हैं तो ले देते हैं, या उन्हें खुद कहते हैं कि अपना घर, अपना बंदोबस्त खुद कर लो। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं ज़रूर ये कहूँगी। सबसे बेहतरीन हाल यही है कि सब रहें अलग और किसी से झगड़े ना। हाँ, झगड़े भी झगड़े तब बढ़ते हैं जब इकट्ठे वो हम कहते हैं जी, सदियों हम इकट्ठे ही रहें और खूब गुत्तम-गुत्ता होते रहें। तो जी, इस्लाम तो ये इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो पहले ही कहता है कि शादी कर रहे हो तो कम से कम अगर घर अलग नहीं तो कम से कम 1 कमरा और किचन उसका अलग हो, क्योंकि 2 औरतें एक किचन में नहीं रहती। किचन बहुत बड़ा मसला होता है, सही बात है। 2 औरतें किचन में नहीं रह सकती। उसका 1 कमरा और 1 किचन बस वो उसको दे दो अलग, सही बात है। है ना? तो बस 2 हमारा चीज़ें भी उसको अलग दे दो। जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो हम तो रहे हैं। चलो जैसे-तैसे था गुज़र गया लेकिन हमने इतने बड़े झगड़े भी नहीं किए, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ही है। हाँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। ससुर तो फ़ौत हो गए हैं, सास मेरे साथ ही हैं हुँ, और हम रहते हैं अभी भी मेरी सास बेचारी अब उनको अब याददाश्त का भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया है लेकिन हाँ। रहती हैं। जो कुछ हो अल्हम्दुलिल्लाह सकता है किधर करते हैं किधर अपनी जाना तरफ है से। उन्होंने? जाना किधर है? किधर भी जी, किसी सही भी तो सही नहीं जाना। बात है, उन्होंने अपने बच्चों को पाल-पोस के बड़ा किया, उनके पास नहीं रहेंगी तो किसके पास किस रहेंगी वो? व्यवहार लोग यानी कि बचपन में माँ-बाप ने बच्चों को पाला, अब माँ-बाप को लोग पालेंगे सही बात है, या ये तो गलियाँ बिल्कुल पालेंगी? माँ-बाप को अब कौन पालेगा? यानी कि माँ-बाप का अब कौन लुक आफ्टर करेगा? अब जब वो किसी काम के नहीं रहे, तो हम हाँ, उन्हें कहें कि जी अब किसी काम के नहीं है, इन्हें बाहर निकाल दो। नहीं ये ऐसा तो बिल्कुल जिनके अपने माँ-बाप हैं, अपने माँ-बाप के बारे में सोचे तो वो ये कभी नहीं सोच सकते कि लेकिन इनको वो बाहर अपने निकालें। माँ-बाप के बारे में तो कहते हैं, हाय मेरी भाभीयों ने ऐसा किया, हुँ। मेरे माँ-बाप के साथ ऐसा किया, हाय हाँ, मेरे भाभीयों को तो मैं कभी मिलूँगी नहीं। हाँ, सही बात है तो खुद मेरे भी सोचे माँ-बाप ना के फिर साथ कैसे ऐसा करें। किया, तो लेकिन ये है कि शोहर का माँ-बाप कोई पकड़ के लाया हुआ था। अब अभी हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं, ये हमें हाँ, पता है ना कि कैसे हाँ, पाल रहे हैं। हम हाँ, दिन-रात एक करते हैं, फिर बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं, बड़े हो जाएँ हाँ, जब तो फिर हमें छोड़ के चले जाएँ, ये भी सोचना चाहिए बंदे का ना कि ये बात तो हाँ। आगे हमारे ऊपर भी आएगी। हाँ, तो फिर ये है कि जब वो छोड़ के चले जाते हैं, जब मैं कह रही हूँ ना कि भी उन्हें कहीं अगर नहीं रहना चाहते, है ना? अगर इतना हुँ, तंगी है, उन्हें इतना हर वक़्त लड़ाई-झगड़ा है, तो ईमान क्यों खराब करने हैं अपने? हर वक़्त सही बात। लड़ाइयों-झगड़ों से क्यों अपने जो अच्छे अमल हैं, उनको ज़ाया करना है? फिर उन्हें प्यार हुँ, से कहा जाए कि बेटा आप अपना ना अपना हाँ, इंतज़ाम कर लें, ताकि हर रोज़ की लड़ाई-झगड़े से बचा जाए। प्यार सही से बात है। कहें, प्यार रोज़ाना से की कहें। बददुआओं से बचता है बंदा, हाँ। फिर दिल दुखाते हैं कभी ज़ाहिर है माँ-बाप कभी का भी तो रखना ही बद-दुआ ना पड़ेगा। दी जाए, कभी किसी हाँ, को माँ-बाप कभी औलाद को बद-दुआ ना दे, बिल्कुल। लेकिन जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं तो कभी मुँह तो से दिल निकल दुखता जाए। है ना, बददुआ हुँ, मुँह से दें या ना दें, दिल तो दुख जाता है ना। दिल दिल दुखता है। तो अल्लाह जी, सुब्हाना तआला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम तो जहाँ पे रह जाएँगे क्योंकि ये हमारी माशरे के मसले हैं।
جی یہ ہمارے معاشرے کے مسئلے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ کتاب جو صحیح. ہے ہماری مسئلوں کا حل ہے، ہوں. کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا، دوسروں کو نہیں ہم بدل سکتے، یہ بھی نہیں نہیں یاد کسی رکھیں. کو صحیح بات ہم کسی کو بدل کسی کو نہیں سکتے. ہم بدلیں گے تو صرف اپنے آپ کو بدلیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو دوسرے ہمیں خود بخود ہی اچھے لگنے لگیں گے. صحیح بات. خود بخود ہی ان میں کم نقص اور ہم میں اپنے آپ میں زیادہ نقص نظر آنے لگے. جب تک ہمیں اپنے آپ میں نقص نہیں نظر آتے نا، تب تک ہم اپنے آپ کو درست بھی نہیں کر سکتے. جب پتہ ہی نہیں صحیح. ہے کہ بیماری کیا ہے تو کیا اس کا علاج کریں، کون سی گولی اپنی کھائیں گے؟ غلطی اگر مانے ہی نہ کہ ہماری کوئی غلطی ہی نہیں ہے تو پھر تو صحیح نہیں کر سکتے نا ہاں جی، اپنے. تو وہی ہے نا کہ جب بیماری کا ہی نہ پتا ہو تو گولی کون سی کھائیں گے، ہے نا؟ جی تو پھر وہ ہے نا کہ بیماری پہلے پتا چلنی چاہیے، تو پھر ہی ہے نا اپنی بیماریاں جو ہیں، اپنے جتنے مجھے غصہ آتا ہے تو میں اس کے اوپر قابو کروں گی. مجھے کسی سے جی میں جلدی کسی کی بات کر دیتی ہوں تو میں سوچ سمجھ کے کروں گی، ہے نا؟ جی کوئی کسی نے بات کیا کہ کسی کے میں بھی ہاں جلدی سے ہاں ایسا ہی ہے مجھے بھی پتا ہے، تو میں اس سے خاموشی اختیار کروں اور اسے بتاؤں کہ خام خواہ کسی کی باتیں نہیں کرتے پھرتے، صحیح لوگوں کو بات. بدنام خام خواہ نہیں کرتے پھرتے. تو یعنی کہ جس طرح بھی آپ چاہے، اگر ہمارا کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو ہم اسے یہ اس طریقے سے بھی کہتے ہیں چلو ہم اپنی کوئی بات کرتے ہیں، دوسروں کی کیا کرنی ہے نا؟ ہاں ہمارے صحیح. تو اپنے ہی بہت سارے مسئلے ہیں تو دوسروں کو کیا چھیڑنے ہیں. یعنی کہ پھر اس کو جو بڑا ہے عزت کے لائق انسان ہے اس کو اس طرح پھر کہہ دیا جائے، ہے نا؟ کسی کو جی بھی تو جو جس کا بھی چاہے وہ چھوٹا بھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے ایسے کہنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے آتے کہ چلو اپنی باتیں شیئر کریں، ہماری تو اپنی ہی اتنے مسئلے مسائل ہیں، دوسروں کو کیا کرنا ہے. تو صحیح بات. انشاءاللہ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جی تو حدیث نمبر 91 ہے، 91 درجے کے نمبر کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. رواه البخاری. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ ہے کہ کچھ لڑنے میں غالب ہو جائے، یعنی کہ وہ جائے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے، اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پائے، اس کو پہلوان کہیں گے ہم. مطلب کیا ہے؟ بہادر کون کرتے ہیں؟ جو کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو کرتے ہیں نا. شاذ خان آپ کی بات کا جواب مل گیا؟ جہاں پہ یعنی کہ جب اب ظاہر ہے کہ سامنے والا آئے گا، سامنے جو غصہ دلاتا ہے سامنے آئے گا، آپ کو وہ بات یاد آئے گی تو ہم کیا کریں گے کہ غصے کی حالت میں غصہ آتا ہے نا اس وقت، جی تو پھر اپنے آپ پر قابو پا جانا ہے، تو وہ آپ پہلوان کہلائیں گی. اس وقت آپ اپنا ایمان بھی بچا گے اور اپنے گناہ، اپنے جو اچھے نیک کام تھے وہ بھی ختم نہیں کیے، یعنی نیکیاں چلی جاتی ہیں نا پھر. جی اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رضا بھی لے لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کر لی. کتنے کام ہو گئے نا. میں نے تو ان کو دیکھنا ہے، جی کس کو دیکھنا ہے؟ یہ چیزیں دیکھنی ہے. یہ میں چیزیں کیا ہیں. لے سکتی ہوں جہاں سے، میں کیا لے سکتی ہوں اپنے غصے پر قابو پا کر، ہے نا. تو اگر میں غصے میں آ جاؤں اور اس کو وہ ایسی ہی سناؤں کہ ایسی کی تیسی کہ تو کیا کہ کیا جہاں جا سکتی ہے، جہاں سے، ہے نا، کیوں جا سکتی ہے، میں تو تجھے چھوڑوں گی نہیں، میں تو آپ ایک بات بتاتی ہیں میں تو 10 بتاؤں گی آگے سے، ہے نا، جی ہے نا. تو جی جب پھر ہوگا تو کیا ہوگا، وہ پھر پہلوانی کدھر آ جائے گی، صحیح بات. ہے نا. لڑائی جھگڑے میں تو بندہ جیت ہی جاتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ بندہ صبر کرے. ہاں، کیونکہ لڑائی جھگڑے میں
कई दफा वो जीत भी इतनी पछतावे की होती है बाद में बाद में फिर पछतावा ही होता है, बाद में सही। वो इतनी पछतावे की होती है, काश काश उस वक्त में सब्र करती, हाँ, सही काश बात। उस वक्त में मुंह को बंद रखती, काश उस वक्त मैं वो बातें मुंह से ना निकालती, क्योंकि वो जो अंदर का ज़मीर होता है वो हमें फिर झंझोड़ता रहता है। इतना फिर हम करते हैं, यानी कि बाद में अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं और क्या कुछ नहीं करते, फिर बाद में बाद में फिर पछतावा ज्यादा लगता है। परेशान होता है बंदा। हाँ, ज़्यादा परेशान होता है फिर बाद में। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमेशा ही हम दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे जी, बस साबिर अल्लाह व से दुआ। शाकिर बना दे, है ना? साबिर व शाकिर बना दे। अगर बांदे आगे वाला बंदा नहीं मान रहा, तो अल्लाह से सब्र और शुक्र की दुआ करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह हम्म, आगे है ये नंबर 19 आलिम उमर قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة قيد ومعها عبد ابتغاء وجه الله رواه इब्न माजा। क्या है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का से रिवायत है, अनहुमा से रिवायत है। अनहुमा जब बाप और बेटा दोनों ही सहाबी थे, तो इसलिए अनहुमा, हुमा दोनों के लिए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे ने अल्लाह ताला के नजदीक गुस्से के घूंट से बढ़कर कोई घूंट नहीं पिया। यानी किसी बंदे ने अल्लाह ताला के नजदीक गुस्से के घूंट से बढ़कर कोई घूंट नहीं पिया। हम मशरूबात भी पीते हैं ना घूंटों में, चाय पीते हैं, खाते बाकी चीजें भी पीते हैं, तो उन पीने से जितने घूंट भरे हैं किसी बंदे ने, इससे भरकर, गुस्से से भरकर कोई घूंट नहीं भरा, क्योंकि गुस्से का घूंट बहुत मुश्किल होता है भरना। हम करते हैं ना ऐसे, यानी कि अपने आप को वो जैसे गुस्से को पीने के लिए तरह जैसे घूंट भरना, बिल्कुल ऐसा होता है ना? हम कहते हैं इसीलिए तो गुस्सा पी जाते कहते हैं ना, गुस्सा खा जाते तो नहीं कहते। खा जाते तो मतलब है कि गुस्सा आ गया, यही है ना हम इस्तेमाल करते टर्म। जी, खा जाते, गुस्सा खा गया जी, इसका जी इसका मतलब है इसको गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। तो अब जब गुस्सा पी जाना, यानी कि घूंट भरना, पीने के लिए हम घूंट भरते हैं ना किसी चीज का, तो उसको घूंट भर के अंदर डाल देना, क्योंकि घूंट से क्या होता है, काफी पानी काफी मिकदार में चीज अंदर चली जाती है, ऐसा ही है ना? वो बड़ी बड़ी गोलियां हम कैसे खाते हैं? पानी के घूंट से ही तो खाते हैं, है ना? तो वो कैसे इतनी बड़ी गोली अंदर चली जाती है, इतना बड़ा कैप्सूल अंदर चला जाता है ना? तो वो घूंट भरना। तो किसी बंदा ने अल्लाह के नजदीक, यानी अल्लाह ताला की नजर में किसी बंदा ने गुस्से के घूंट से बढ़कर कोई घूंट नहीं पिया, जिसको वो अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के लिए पी जाता है। क्या समझाई? वो घूंट जो गुस्से का पिएंगे ना, वो अल्लाह की रजामंदी का होगा। अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह मैंने तुझे राजी करना है, बस इन इन इंसानों से तू मुझे सब्र ही सिखा दे, दरगुजर ही सिखा दे। और फिर उनको बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कह रहा है ना, कई दफा होता है इंसान अपने आप को ऐसे स्विच ऑफ कर लेता है ना, स्विच ऑफ यानी कि बिल्कुल लाइटें बंद हो गई दिमाग की, मैंने नहीं सुनना इसकी बात को, मैंने नहीं इसकी बातों पर ध्यान रखना, मैंने तो अपने रब को राजी करना। अल्लाह की रजामंदी के लिए गुस्सा पीना, इसका मतलब क्या है हदीस का? अल्लाह की रजामंदी के लिए गुस्से को पी जाना जो है, वो अल्लाह के नजदीक किसी और मशरूब से, किसी और चीज से जो घूंट भरा जाता है उन सब से ऊपर है, सबसे बढ़कर है। सिस्टर मेरे ख्याल में जब हम इस तरह से दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें किसी से ना ही हम झगड़े सब्र से रहे, हाँ तो वो ना जो वो पॉइंट होता है ना जहाँ पे झगड़ा होना होता है, आप खामोश हो जाते हैं, जैसे सब्र का घूंट पी लेते हैं हाँ या जी, हाँ स्विच जी। ऑफ हो जाते हैं।
وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کر دیتا ہے۔ ہوں ہوں میں نے یہ یوں فیل کیا ہوا ہے، جس کے بعد نا اکثر میرے اپنے بچے ہی کہتے ہیں آپ نے اس جگہ پہ ایسے کیا تھا، آپ بول ہی نہیں سکتی، آپ ان کے سامنے ایسے کہہ ہی نہیں سکتی، ہاں جی، ایسا فیل کئی کر انسانوں کے سامنے خاموشی اختیار کی کہ جاتی ہے۔ مجھے نا اللہ تعالیٰ ایسے کروا دیتے ہیں۔ ہاں ایسے کروا دیتے ہیں کیونکہ دعا مانگی ہوتی ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ میری فیملی میں بھی ہے، کیونکہ ہر خاندان میں ہوتے ہیں، ہاں جی، کئی انسانوں کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بہت ساری میری فیملی میں ہیں ایسے کہ جن کو تو بس وہ کہتے ہیں تو میں خاموشی اختیار کر لیتی ہوتی جی، تو وہ بچے یہی بس، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپ نا ہم مقابلہ نہیں کر بچے سکتے۔ یہ ان سے ہم یہ بچوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں بچے تو یہی کہتے ہیں، ہے نا، لیکن یہ ہے کہ مقابلہ کر کے جائیں گے کہاں؟ ہم؟ ہاں یہی جی، بات ہے۔ مقابلے سے تو جھگڑا بڑھے گا نا، ہاں جی، ہاں سر اس طرح مقابلہ کرنے سے نا نہیں کر بے سکتے، سکون رہتا ہے کہ سکون جب رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ چلو میں نے تو نہیں کچھ بولا نا، بول گئی جو بول گئی، میں نے تو نہیں کچھ ہاں، کہا نا، میں نے اپنے آپ کو تو بچا لیا نا۔ پھر یہ ہے کہ جب اللہ کی رضامندی سامنے آ جائیں گے، اللہ سے مانگا بھی کریں، اللہ تعالیٰ تیری رضا مجھے چاہیے، اور تیری رضا کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو تجھے غصہ دلانے والا ہو، جو تجھے، یعنی کہ ہر وہ کام نہ کرنے پر میری مدد فرما جو تجھے غصہ دلانے والا ہو، اور ہر وہ کام کرنے پر میری مدد فرما جو کہ تجھے رضامندی کرنے والا ہو۔ تو اس میں سارے ہی پھر آ جائیں گے، ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ تجھے ہر وقت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم مدد کرتے ہیں، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم ذات، برحمتک نستغیث، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، فلا تکلنا، یا فلا تکلنی الا فلا تکلنی الا انفسنا طرفۃ عین، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ٹھیک ہے، نفس کے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ کرنا، کیونکہ نفس کیا کرتا ہے، نفس ہمارا تو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ شروع کریں وما ابریو، کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے نا، کہ نفس ہمارا تو کیا کرتا ہے، وہ تو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہی ہے، وہ تو ورگلاتا ہے بیماری برائیوں کے لیے، بھائی کی لیکن طرف ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ تو وہ پھر کیا ہے کہ انسان اس میں آ جاتا ہے، اللہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، طرفت عین، اللہم، اب میرے ذہن میں کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے دعا، اللہم اکفینا بحلال، نہ یہ اور دعا ہے، اللہم اکفینی، کیا میں نے بحلالک کہا تھا، حرامک نہیں وہ میں فإننی نے، یا وہ حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک اصلح لنا، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کی اصلاح فرما دے، جی، اصلح لنا شأننا کلہ، تمام کاموں کی ہمارے کی اصلاح فرما دے، شأننا کلہ ولا تکلنا فلا تکلنا الی انفسنا، جہاں پہ ہے کہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، جی طرفت پلک کے برابر یا ایک لمحہ کے لیے بھی۔ لمحہ کے برابر بھی نہیں، کیوں، اللہم اکفنی، کیا ہے، نہیں، یا حی یا قیوم، وہ نا جس طرح مجھے یاد ہوئی ہے نا، اسی طرح میرے ذہن میں آتی ہے جب میں اسے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں نا، علیحدہ علیحدہ کر کے، جی وہ جی مجھے جی مشکل، جی کیونکہ سامنے نہیں ہے نا میرے دعا۔ جی سسٹر، یہ صبح و شام کی دعاؤں میں ہم مانگتے ہیں نا۔ ہاں وہی ہے نا، وہ سامنے جب ہوتی ہے نا تو جی پھر ہم جو ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے آسان ہوتا ہے، تو سامنے نہیں ہے۔ تو صبح شام کی دعاؤں میں ہم نے پڑھی بھی ہے، مجھے میرے پاس ہے بھی، اور بہنوں نے پڑھی بھی ہے میرے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ بھی اس کو دیکھیں گے۔ تو صبح شام کی دعاؤں میں جی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے لیے مدد مانگتے رہیں، کہ ظاہر ہے سبھی کے لیے مدد مانگے، سامنے والے کے لیے بھی مدد مانگے، تاکہ وہ ورگلائے ہی نہ ہمیں، جی وہ وہاں تک پہنچائے ہی نہ ہمیں، کیونکہ جب وہ پہنچاتا ہے وہاں تک انسان، تو ظاہر ہے اللہ کی مدد ہوئی تو وہ کچھ نہ کچھ بہانہ بن جائے گا، وہ پرے ہو جائے گا۔ جی
है ना। इस तरह हम अल्लाह की मदद मांगते हैं। जब बंदा अल्लाह के हवाले अपने आप को करता है ना, तो फिर अल्लाह सुब्हाना तआला भी मदद करते हैं। जी ये दुआ अब मेरे सामने है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अस्तगीस है अपने अपने लिए लिए। पढ़ने के लिए। अस्लिह ली शअनी कुल्लहू, ए जिंदा कायम जात, यानी कायम रहने वाले, तेरी रहमत के सबब से फरियाद करता हूँ क्या कि मेरे सब कामों की इस्लाह फरमा दे। वला तकिलनी इला नफ्सी, और ना पलक झपकने के तक के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना, तरफता आइन, इतना भी ना करना मेरे क्योंकि पलक झपकना कितनी आसान है ना, कितनी जल्दी हम 1 मिनट में हम कितनी बार झपकते हैं ना। तो वो 1 सेकंड में भी हम कई बार झपकते हैं अपनी पलक को। तो इतना भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। क्यों? क्योंकि नफ्स जो है ले जाएगा कहीं। तो इसलिए हमें दुआओं, सुबह शाम की दुआएं जो है हमें सारी प्रोटेक्शन दे देती है, अगर हम यकीन से जी, मांग सही। लें तो, है ना। क्योंकि वो जितने सारा दिन काम होने होते हैं ना ऐसे, हाँ जी। अल्लाह ताला उन सब से महफूज रखता है। हम्म, लेकिन कभी हो जाए कि हमारी दुआएं वो ना सुबह या शाम की पड़ी जाए, तो फिर देखे हंगामा क्या होता है। सही कह रही हैं। फिर वो सामने आते हैं इंसान, सही कह रही हैं। वो ऐसे वार फिर करते हैं आगे, है ना। तो इसलिए हमें, तो हम तो वो दुआएं सुबह शाम की जो मांगते हैं यही तो मांग रहे होते हैं। दूसरी भी तो एक दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह, जी, है ना। बिल्कुल। ये मैंने अभी अभी हमने पढ़नी शुरू की है अपनी दूसरी क्लास में, इसको याद करना शुरू किया है 13 नंबर को। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियत फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, सारे आगे, जी, जी, है ना, अल्लाहुम्मा। सारे ही आगे। आफ़्व यानी दरगुज़र करने का, जो भी अब मेरे सामने आएगा उससे दरगुज़र करने का, और मैं आफ़ियत यानी उन सबको प्रोटेक्शन दे। अब प्रोटेक्शन उन लोगों से भी हो सकती है, चोर डाकू से भी हो सकती है, घर वालों से भी हो सकती है, जी, वो बातों के तीरों तलवारों से भी हो सकती है ना? हर तरह से। तो अब फिर हम क्या मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिर रौआती, है ना? जी, किस तरह हम अपनी हिफाजत के लिए मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला मेरी फिर मेरे मेरे ए अल्लाह मेरे ऐब ढांप ले और मुझे खौफ से अमन दे दे। तो वो खौफ होता है ना उस इंसान का सामने जो आता है ना? खौफ होता है कि ये इंसानों का खौफ होता है कि कभी कोई मेरे मुँह से ना बात निकल जाए, वरना तो ये तो आगे से पता नहीं क्या करेंगे, है ना? सही। तो उस वक़्त वो खौफ होता है, तो इसलिए जब हम वो दुआओं की, अल्लाह की प्रोटेक्शन में, अल्लाह के शेड में आ जाया करें, सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए अपने शेड में आने की, अपने साए में आने की, अल्लाह की आमीन प्रोटेक्शन की, अल्लाह की छतरी के नीचे आ जाया करें। जी, जब आमीन बंदा तो सुबह शाम की दुआएँ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन की, अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त की छतरी के नीचे आ जाता है। सिस्टर मैं बंदों से नहीं डरती। मुझे अल्लाह का डर आता है, किसी से हाँ, बस बात यही है। मैं खुद भी ऐसा नहीं कहती हूँ, डरती। कोई आगे वाला जो मर्ज़ी कहता रहे, फिर मैं कहती होती हूँ कि बस मुझे तो अल्लाह का डर है, हाँ, अल्लाह सही का मैं बात डर है, है। यही तो होना हाँ, चाहिए। उन बंदों से हमने झगड़ना नहीं, उन बंदों से हमने उलझना नहीं है, जो हमारे खाम-खा के अमाल ज़ाया कर दें। हाँ जी, उन बंदों से इसलिए बचना है कि वो ना, उनसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे हम। मुकाबला कैसे, करना भी नहीं चाहिए। किस बि तरह कई दफ़ा होता है ना कि हम कहते हैं मैंने तो उसने मुझे 1 सुनाई, मैंने तो 10 आगे सुना के आई। हाँ जी, और मैं ये समझती हूँ कि ये हमारा ये कैलिबर नहीं है। हुँ, एक मोमिन का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सही बात। मोमन की ये शान नहीं है कि वो ऐसे वो कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं इबादुर रहमान की सिफात में से है, वो तो जाहिलों से ऐसे पर गुजर जाते हैं, है ना। हाँ जी, वो जाहिलों से दरगुजर करके गुजर जाते हैं, वो तो बहुत ऐसे बहुत आराम से गुजर जाते हैं, जाहिलों के मुंह नहीं वो लगते वो। ऐसे होते हैं कि एक के बदले में 10 सुनाते हैं, तो बंदा इतना मुकाबला भी नहीं कर सकता। हाँ, स्टेमिना नहीं होता है और बंदा यही सोचता है कि इसके मुकाबले में हम बुरी बात ही बोलेंगे तो अल्लाह ज़ाहिर है हमें गना ही देगा। तो हाँ, बेहतर है कि ना ही बोले। ना ही ना ही बोले। बेहतर है कि ना ही बोले, है ना? सही तो बात है। ये है बात। तो हम हमेशा ही अल्लाह करे कि अल्लाह से दुआ भी हम यही माँगते रहा करें, अल्लाहुम्मा अहदिनी व सद्दिदनी, अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्दिदना, है ना? आमीन, कि आमीन। अल्लाह ताला मुझे बताएँ हिदायत दे और सीधा रख।
हाँ, सीधा रखना, जब अल्लाह सीधा रखेंगे तो फिर मैं टेढ़ी तो नहीं होंगी ना। जी सही बिल्कुल। बात। जब मैं दुआ हम्म, मांग रही हूँ, अल्लाह महदीनी व सद्दिदनी, अल्लाह मुझे बताए। हदायत दे और सीधी रख। तो जब मैं अल्लाह के रास्ते पे सीधी रहूंगी तो मुझे उन वो टेढ़ी मेढ़ी रोडों से होके जो गुजरना है वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है सही ना? बात। वह मैं खुद ही क्यों, जो काम अगर किसी से कहा, वो एक बच्चा है, बच्ची है, उससे काम कहेंगे तो आपको 10 सुननी ही पड़ेंगी और आपको गुस्सा वो दिलाएँगे, फिर आप उससे वो 10 सुनाएँगे, फिर वो आगे से आपको फिर 10 सुनाएगा और आप बाद में एंड पे खुद ही ये कहते बात हैं, बढ़ती ही खुद जाएगी फिर। फिर काम खुद ही करना है। जी, काम वो खुद ही करना है जो बच्चे को कहा था, सही बात। है ना? सही। सही बात है, सही। क्योंकि वो तो गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा करके परे चला जाएगा। और हम हाँ। गुस्से में आके कहेंगे, मैं खुद ही कर लेती हूँ, हाथ नहीं लगाना अब। सही। ऐसा होता है? सही बात है। ऐसा ही हम फिर करते हैं, है ना? वो काफ़ी झगड़े के बाद में एक ऐसा ही बाद में करना हम होता कहते हैं मैं खुद ही कर लेती है। हूँ, तो जब खुद ही करना था तो पहले ही कर लेते, सही बात। है ना? पहले ही कर लेते, सही जब बात। किसी बच्चा के उसके लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे। अल्लाह ताला मैं डिसिप्लिन नहीं दे सकी इसे, मैं अदब नहीं सिखा सकी, तू मेरे लिए इसे सिखा दे। जी। है ना? एक दुआ भी है ना, बच्ची और बच्चे को सही उसका बात। नाम लेकर डिसिप्लिन सिखाने के लिए कि अल्लाह ताला मैंने इसको देना चाहा ये अदब, लेकिन मैं नहीं दे सकी, अल्लाह ताला तू मेरे लिए इसे दे दे। अच्छा। सही है ना? बात। तो अल्लाह सुभान ये मैं एक उसका दुआ का मफ़हूम ही बता रही हूँ उर्दू के तर्जुमे के साथ। ठीक है? सही बात। तो हाँ। जी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर माँगा करें अपने लिए, अपनी ज़ुबान में माँगे, नहीं आता तो ना आए कोई अरबी। लेकिन अपनी सही। ज़ुबान में जो माँगना है माँगे, अपना रब कौन-सा हमारी ज़ुबान नहीं समझता, अल्लाह हाँ, ताला को तो हर अल्लाह ज़ुबान से की पता है कौन-सा पर्दा है हमारा, अल्लाह है तो ना? सब कुछ जानता है। सारी ज़ुबानों को जानता है अल्लाह ताला ने, तो सही ज़ुबानें दी हैं। बात। तो अल्लाह ताला तो हाँ। जानने वाला क्रिएटर है ना, तो वो नहीं जानेगा तो और कौन-सा कौन कोई जानेगा किसी और ना? अगर मैं कहूँ कि हाय मैं अपनी ज़ुबान में कैसे माँगूँ? तो रब रब ने ही तो मुझे अपनी ज़ुबान दी है, तो अपनी हाँ। ज़ुबान में मैं कंफर्टेबल होके दुआ माँग सकती हूँ। लेकिन ये है कि अगर अरबी में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ माँगी हैं, वो माँगी जाएँ तो वो सुन्नत पे भी अमल होगा, हदीस पे भी होगा और फिर ये है कि हम अरबी में बहुत वुसअत होती है उन अल्फाज में जो माँगते होते हैं। सही यानी कि बात। काफ़ी माँगते हैं। जैसे हम अरबी का अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उर्दू का शुक्रिया कहें तो क्या फ़र्क है? कि कोई उसमें बहन हम बताएगी? तारीफ बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह में तारीफ अल्लाह की तारीफ भी आ जाती है और उसके मशहूर होते हैं हाँ, अल्लाह के। अल्लाह ताला का शुक्र और तारीफ़ दोनों बयान कर रहे होते हैं, लेकिन अगर शुक्र करें तो उर्दू वाला शुक्र कहें, वो भी आता है ना? जी, वो सिर्फ बंदे का यशकुरु शुक्र हो गया ना कि थैंक यू। हाँ, वो तो सिर्फ़ शुक्र है, अल्लाह का भी शुक्र करें तो वो सिर्फ़ शुक्र ही जी, है ना? लेकिन हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह तो ब कब कहते हैं जब कोई हमारा काम हो जाता है, बच जाता है कोई इंसान, किसी जी, हादसे से बच जाता है, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्लाह जी, ने मुझे बचा लिया, है ना? तो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और अल्लाह का शुक्र भी करते हैं, है ना? जी, जी, तो अल्लाह को बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा कहने से पूरा मीज़ान भर जाता है, जी, पूरा मीज़ान मिज़ाज। का तराजू भर जाता है। मीज़ान क्या है? तराजू ही है ना? तो जो क़यामत हाँ, के दिन रखा जाएगा तौलने के लिए। सही बात है। ठीक है? मीज़ान पूरा भर जाता है एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से। एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने से आधा मीज़ान भर जाता है। जी, यानी जी। तराजू वो आधा भर जाता है। पूरा तराजू कब भरता है? अल्हम्दुलिल्लाह जब कहने से। तो बहुत पावरफुल कलिमा है ये। तो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहने से क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि 2 कलिमात ऐसे हैं जो ज़ुबान पर हल्के और मीज़ान में भारी हैं। बात जी, जी। वो सुभान हैं अल्लाह व सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जी। तो ये ये हमने चरिंद परिंद की भी तस्बीह है ना कि सारे जो परिंदे सुबह तस्बीह कर रहे होते हैं, वो भी यही तस्बीह है सुभान वो अल्लाह। अल्लाह आलम है, वो सब नहीं जानते। मैं अल्लाह नहीं अल्लाह। जानती तब मुझे उसका इल्म है कि अच्छा, हाँ, अल्लाह सुब्हान व तआला के ये चरिंद परिंद जो हैं जब वो आपको पता है सुबह के फजर में चरिंद परिंद जब बहुत शोर मचा रहे होते हैं तो एक शेख ने हमारे पास माशाल्लाह इजिप्ट से है अच्छा, तो उसने बताया था कि क्योंकि हमारी मस्जिद वाले जो हैं पाकिस्तानी हमेशा ही ऐसा ही करते हैं हमेशा नहीं आम जी, तौर पर होता है हमारी मस्जिदों में कि बिल्कुल दिन चढ़ा होता है और फजर पढ़ रहे होते हैं मस्जिदों में जी, जी, सही है कह ना रहे
आखिरी वक्तों में फजर की नमाज पढ़ाई जाती है। तो वो उसने कहा था कि ये जानवरों की चरिंद परिंद की तस्बीह से पहले इंसान को तस्बीह करनी चाहिए, क्योंकि वो अशरफुल मखलूकात है। सही, तो बिल्कुल ठीक। पहले होनी चाहिए, तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम पहले करें। तो आज ये नहीं है कि आप वो कर चुके हैं, तो आप जब दिन बिल्कुल हो रहा होता है तो आप सुने एकदम चरिंद परिंद कैं जी, कैं चैं चैं होना, बिल्कुल एकदम शोर मचा बहुत देते हैं। शोर उठता है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शोर एकदम, कभी उस वक़्त में आप बाहर खड़े हों, हाँ जी, तो इतना शोर मचाते हैं, तो वो उनकी तस्बीह है। हाँ जी। वो तस्बीह कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता। ठीक है? अल्लाह ही बेहतर जानता है उनकी तस्बीह को और उनकी जो भी उनकी अल्लाह उन्हें जुबान से अल्लाह ही जानता उनकी है ज़ुबान सारी। को तो जे उनकी तस्बीह के कलिमात और होते हैं, और जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ें और होती हैं। जी, ये भी कभी नोट करें। सही जब कह वो जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ें, चिड़िया की कभी नोट करें, जब वो 2-3 चिड़िया इकट्ठी हों तो उनकी आवाज़ें सुनें, और सुबह के टाइम की उनकी आवाज़ें सुनें, या शाम के टाइम की। तो वो सुबह-शाम अल्लाह की तस्बीह करते हैं, जब दिन आ रहा होता है या रात आ रही होती है, ठीक है? तो इसलिए वो यानी हाँ, इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो इंसान को सुबह की नमाज जो है अल्लाह की तस्बीहात कब करनी चाहिए, उससे पहले। अल्लाह हमें तौफीक दे। तो कभी ऐसा होता है कि जाग ही नहीं आती, इंसान ऐसा सुस्त हो जाता है। अल्लाह ताला हमारी सुस्तियाँ दूर करे और अल्लाह हमें तहज्जुद पढ़ने वाले बनाए। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, वरना तो ये सारा दिन चला जाएगा। ना? कि 93 है, अन सहल बिन मुआद रदियल्लाहु ताला अन्हु अन अबीही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सहल बिन मुआद जो है, इनका मुझे पता नहीं है कि ये सहाबी हैं या ताबी हैं, यानी कि बाप से सुन रहे हैं ना। अन अबी ही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन कज़म गैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु दआहुल्लाहु यौमल क़ियामति अला रुअसिल ख़लाइक़ि हत्ता युख़य्यरहु मिन अय्यिल हूरिल ईनी शाअ। रवाहुल अबी दाऊद। काफ़ी मुश्किल अल्फ़ाज़ के साथ है ना? सैयदना सहल बिन माद रदियल्लाहु ताला मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि माद बिन जबल का नाम आ जाता है मेरे ज़हन में, तो जिसकी वजह से मैं रदियल्लाहु ताला अन्हु कह देती हूँ। सैयदना सहल बिन माद, तो ये सहल बिन माद तो हज़रत माद के ही बेटे हैं ना फिर। हुँ? माद बिन जाबर क्या कहते हैं? तो माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही बेटे हैं ना फिर, सहल बिन माद, ना? माज़ जी, बिन जाबर तो आपने सुना हुआ है ना, बहुत जलीलुल कद्र सहाबी थे, जी, जी। है ना? जी, माज़ बिन जबल ही थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाकर भेजा था ना, सिपह सलार। उनको हुक्मरान बनाकर भेजा था, किस इलाके का था? तो उनको कोई ताकीदें फरमाई थी ना, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में, आखिरी दिनों में। तो ये है कि वो अपने बेटे यानी अपने बाप से ज़ाहिर है कि उनके वालिद यानी माज़ बिन जबल ही होंगे। माज़ है जहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं अस्यूम करती हूँ कि माज़ बिन जबल हैं, जो रिवायत करने वाले हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्से को रोके, हालांकि उसको अपना गुस्सा निकालने का इख्तियार हो, यानी कि उसको ताकत है, उसके उसमें ताकत है, और उसका चांसेस भी हैं कि वो गुस्सा निकाल सकता है। जैसे छोटे पर गुस्सा आ गया, तो बच्चों पर बहुत गुस्सा निकाल सकते हैं ना हम, चांसेस है। क्यों? क्योंकि बच्चों पर हमारा पूरा इख्तियार है होता है ना, तो हम वो गुस्सा निकाल सकते हैं, इख्तियार है। तो इख्तियार भी हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको तमाम लोगों के सामने बुलाकर फरमाएगा, ज जिस हूर को चाहे पसंद कर ले। अब आप कहेंगे कि औरत को फिर क्या मिलेगा, वो तो मर्दों के लिए है। हुँ? वो अल्लाहु आलम, अल्लाह ताला औरतों को क्या देंगे, है ना? है ना? वल्लाहु आलम। क्योंकि हदीस हमें
बता रही है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मर्द मौजूद हैं, उनको बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि गुस्से को रोके रखो, जबकि आप निकाल भी सकते हो गुस्से को, यानी कि पूरा इख्तियार हो आपके सामने। तो क़यामत के दिन उस इंसान को, उन लोगों उस इंसान को अल्लाह ताला तमाम लोगों के सामने बुलाएगा, यानी कि अगले और पिछले हाज़िर होंगे ना उस दिन। हमारी नस्लों के सारे पिछले भी, हम जिनकी नस्लें हैं और हमारी नस्लें भी सामने होंगे हमारे। और अल्लाह ताला, अल्लाह करे कि हम उन लोगों में से हो जाए कि जो अल्लाह के लिए गुस्सा पी जाने वाले हों। तो अल्लाह ताला सब के सामने, ये कितना अजाज़ की बात है ना, ये अजाज़ दे रहे हैं एक, अल्लाह ताला क्या दे रहे हैं, इनाम, है ना, जी कि जिस हूर को चाहो पसंद कर लो, और हर एक के लिए नहीं है हूरीन, ठीक है। तो अल्लाह आलम, औरतों को भी वल्लाहु आलम, शायद हूरे मिले उनकी खिदमत गुजारी के लिए, आई डोंट नो, क्योंकि किसी जगह पे मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ कि औरतों को भी हूरें मिलेंगी। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला को पता है कि उसने क्या देना है, क्योंकि अल्लाह ताला जी जब आती है ना अमाल की बात, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि सब मर्द और औरतें एक जैसे ही हैं। सिर्फ जी इमाल के, यानी कि दर्जा औरतों और मर्दों का इबादत और अमाल के हिसाब से बराबर है। चाहे कोई मर्द हो या औरत, जो भी काम करेगा उसको उसका दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्योंकि ये औरत है इसको नीचे कर दिया जाए, इसको तो वो दर्जा मिलना नहीं है, ऐसा नहीं, ये दुनिया में ही होता है ना। क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सब अपना दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए लौटा दिया था। तो क्या अल्लाह ताला ने दुनिया में खुशखबरी दे दी कि वो खदीजा आ रही हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आ रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें कहना कि अल्लाह और जिब्राइल उन्हें सलाम कहते हैं, सलाम भेजते हैं, और उन्हें मोतियों के महल की खुशखबरी भी दी थी, है ना, एक दफा, कि अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह ताला ने जिब्राइल से फरमाया कि जाओ, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने ही भेजा है ना, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर ये खुशखबरी दी थी कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मोतियों के महल की, जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी दे दो। क्यों? इतना बड़ा महल मोतियों का, वो भी हम पसंद करते हैं ना मोती, हम कहते हैं सुच्चे मोती, है ना, मोतियों का महल होगा उनका, सुभान अल्लाह। तो वो जो भी हुआ अल्लाह सुब्हाना ताला के घर में सवाब की नीयत से, अल्लाह सुब्हाना ताला से अजर की नीयत से, तो इंसान अगर दरगुजर कर लेता है ना, और गुस्सा पी जाता है, तो बहुत बड़े-बड़े इनामात का हकदार हो जाता है। तो आगे आया हदीस नंबर 95 है, अन अनस क़ाला लम यकुन कुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला लआनन वला सब्बाबन काना यक़ूलु इंदल मातबा मातबती मा लहू तारिबा जबीनुहु, रवाहुल बुखारी। सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहश गो नहीं थे। फहश गो क्या होता है? फहाशी क्या होती है? गंदी बात लगभग करने वाले, गंदी गंदी बात, जुबान कभी उन्हें करने वाले, फहश गो नहीं गाली थे। गलौज। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत मलामत करने वाले थे, और ना गालियां देने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया तो सिर्फ इतना कह देते, इससे क्या हो गया है, इसकी पेशानी में खाक लगे। यानी जब गुस्सा ज्यादा आता तो क्या कह देते, तू इसे क्या हो गया है, यानी कि इसे, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ये ऐसे काम क्यों कर रहा है, इसकी पेशानी में खाक लगे। आपको पता है पेशानी में खाक लगने का क्या मतलब है? हम्म, क्या समझे सर पेशानी में खाक? मतलब इंसल्टिंग सेंस में, या कह लें कि नीचे हो, इसके दर्जात नीचे हो।
तो दूसरा ये भी है ना कि हम सजदे में क्या करते हैं, हाँ जी, पेशानी अपनी जमीन पे रखते हैं अल्लाह के हुजूर सब खाक लगती है ना, हाँ जी, पेशानी पे भी खाक। हम तो बहुत बड़े बड़े जाय नमाज आप पर बिछाते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो मेरा जो रात थी कौन सी, लैलतुल कद्र की रात, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र मिल गई थी, जिस रात में मिल गई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उस सुबह को अल्लाह के नबी जब को देखा लोगों ने, तो वो पेशानी पे मट्टी, गीली मट्टी लगी हुई थी, क्योंकि रात बारिश भी हुई थी। तो ये फिर ये है कि मट्टी लगना जो है, ये कोई गंदगी की अलामत नहीं है, ठीक है। तो ये एक तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसे और या अल्लाह के करीब होने की तौफीक दे, क्योंकि सजदे में क्या इंसान होता है, अल्लाह के बहुत करीब होता है ना। जी, तो सिस्टर जब ये बंदा अल्लाह के करीब होता है तो वो इसको गलत काम नहीं करता। हिदायत दे, हम ऐसे भी हाँ, इसको हदायत यानी कि क्यों ये ऐसे कर रहा है, इसकी पेशानी में खाक लग गई, यानी कि फिर ये ये इसको ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये नीचे हो जाए। जी, हम्म, अल्लाह के कुछ हुजूर भी हो सजदा सकता है, रेज़ हो या कुछ भी है ना, इस्तग़फ़ार करे या अल्लाह है ना, इसको हिदायत दे। हदायत दे। तो हाँ, अब वो लोग क्या कहते हैं, इतनी गालियाँ बच्चों को, तू मर जे, तू रुड़ जे। मैंने आप खुद सुना है पाकिस्तान में माएँ जैसे बच्चों को बेचारों को जी, इतनी बेवकूफ़ बददुआएँ दे रही होती हैं छोटे-छोटे बच्चों को कि अस्तगफिरुल्लाह, आपको पता नहीं है कि कब माँ की दुआ लग जाए, बाप की दुआ लग जाए, बददुआ लग जाए, है ना? तो कभी नहीं बददुआ किसी को देनी चाहिए, गुस्से में आकर भी बददुआ नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कबूलियत की घड़ी हो तो लग जाए तो फिर हम पछताएँ सारी उम्र, हाय मेरे बच्ची-बच्ची को ऐसा क्यों हो गया? सही इसे क्या बात। हो गया? तो कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने गिरेबान में झाँके कहीं बचपन में, जब ब ब बड़े होते हुए उसे कोई बददुआ तो नहीं दी थी? कोई से ऐसे अल्फाज तो नहीं उसके लिए निकाले थे मुँह से? अल्लाह माफ करे। कई दफ़ा हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, हम बहुत नादान होते हैं जब ऐसी बातें करते हैं कि जब इसके बच्चे आज के अपने बारे में होंगे ना, तो वो गुस्सा इसे दिलाएँगे तो फिर इसे पता चलेगा। अब तू मेरी बात नहीं सुन रहा ना, जब तेरे बच्चे जब ज़रा बच्चे बड़े होते हैं, शादी के लायक होते हैं, जब शादी हो चुकी होती है, तो अब फिर हम कहते हैं तेरे बच्चे जब बड़े होंगे ना, जब तेरे बच्चे तुझे सताएँगे, तुझे फिर पता चलेगा। तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। ये भी एक बददुआ है कि तेरे बच्चे भी तुझे सताएँ, तू मुझे सता रहा है और तेरे बच्चे तुझे सताएँ। बददुआ है ना फिर, सही बात है। है ना? तो ऐसी चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, हम कह देते हैं जाने-अनजाने हम बहुत सी बातें कह देते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमारे बच्चों के हक़ में वो दुआएँ कबूल ना करे। अल्लाह आमीन। रहम करे। हम तो 96 है, अन अबी ज़र्रिन क़ाल इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लना इज़ा ग़दिबा अहदुकुम व हुवा क़ाइमुन फल यजलिस फ़इन ज़हबा अन्हुल ग़दबु व इल्ला यत्ता यत्ताजी। रवाह अबी दाऊद। तो ये अब हल है मसले का, ठीक है? गुस्सा का हल बताया जा रहा है। क्या है? सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अबू ज़र गफ़ारी हैं ये, ठीक है? सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, जब तुम में से कोई गुस्से में हो और वो खड़ा हो तो बैठ जाए। अगर गुस्सा जाता रहे तो खैर, वरना लेट जाए। तो कहीं और जगह भी है कि वो वुदू कर ले, उठे और वुदू कर ले, है ना? वुदू भी कर ले, वुदू करने से भी गुस्सा जाता रहता है। जहाँ पे नहीं है लेकिन और जगह पे है कहीं, कि पानी वुदू पीने का करने से भी भी, है। पानी पानी पीने पीने से, वुदू करने से गुस्सा जाता रहता है। अब जो तब भी है तो हम इतना कदम उठा लें कि फिर नहा लें, नहाने से भी फ्रेश हो जाता है, ठीक है इंसान। तो ये नहाना वगैरह मैं अपने आप से कह रही हूँ, क्योंकि नहाने से इंसान फ्रेश होता है तो कई दफा वो रिलैक्स हो जाता है जिस्म। लेकिन वुदू करने का है, वुदू वगैरह करने का, पानी पीने का, वुदू करने का है, ठीक है। लेकिन अगर गुस्सा खड़े खड़े आ रहा हो तो बैठ जाए, बैठा भी गुस्सा कर रहा है तो लेट जाए, क्योंकि लेटने से क्या होता है,
जिस्म में थकावट भी, जिस्म के वो अज़ा भी हैं जो वो फिर काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं और इंसान का गुस्सा भी जाता रहता है। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला तो ये इसका इलाज था ना। इस्लाम इलाज भी बताता है, बीमारियां नहीं निकालता सिर्फ। इंटेंशन चेंज हो जाती है ना, जिस तरफ आपका दिमाग है तो उससे आपने हट के कुछ किया है तो वो थोड़ा आपका चेंज हो जाता हाँ, चेंज हो गया। तो अगर शौहर गुस्सा रहा हो, आप शौहर से है कि एक कमरे में ही हम आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो हम मेरी टीचर अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो कहती होती थी कि आप वहां से दफा क्यों नहीं हो गई, यानी किसी का तलाक तक की नौबत थी। तो उन्होंने कहा कि इतना गुस्से में कि भाई आप वहां से जब इतना पता था आपको कि ये अब गुस्से में हैं, तो जगह बदल लेती, दूसरे कमरे में चली जाती, घर से थोड़ी देर बाहर चली जाती, जब तक उनका गुस्सा ठंडा ना हो जाता। क्यों प्रोवोक करती रही, क्यों गुस्सा दिलाती रही, क्यों जवाब देती रही बातों का। यानी जब पता हो कि शौहर ऐसा गुस्से वाला है कि कहीं मुंह से ना निकाल दे, आपको पता है ये इतना मजबूत रिश्ता भी है और इतना नाजुक भी है दूसरी तरफ कि एक धागा कच्चा, एक कच्चे धागे की तरह भी है जी। एक लफ्ज ही होता है ना तलाक का, तो ये धागा टूट जाता है, एक लफ्ज ही। तो ये इसलिए खास कर मियाँ बीवी के रिश्ते में जब गुस्सा आता है तो फिर हम काम डाउन होना चाहिए। जब एक बंदा, या फॉर एग्जांपल मैं गुस्से में आ जाती हूँ तो मेरे शोहर खामोश हो जाते हैं, है ना। तो अगर शोहर गुस्से में आ जाए कभी तो फिर मुझे भी क्या करना चाहिए? हम्म, मैं क्या करूं फिर? है। खामोशी खामोश हो जाओगे। से ही हम सीखते हैं ना, है ना? गुजारा ऐसे ही होगा। हाँ, वो क्या है फिर गुजारा ऐसा, जब उनको गुस्सा आए तो मैं खामोशी का इख्तियार करूँ, अगर मुझे गुस्सा आए तो वो खामोशी इख्तियार करे, तो जी। फिर गुजारा होगा, है ना? तो अगर अगर मैं कहूँ कि अब जितनी सुनानी है ना अभी सुना दूँ, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो अब बात दूसरी तरफ निकल जाएगी कि यानी कि एक औरत के साथ तू सारी उम्र अच्छा सलूक करता रहे और एक बार ही तू उसकी बात को ना कह दे कि हम्म, नहीं देनी ये चीज, तो वो क्या कहती है? कि मेरे साथ मैंने सारी से ही उम्र, ज्यादा होती है। मैंने कभी तुझ में भलाई देखी ही नहीं है, जी, तूने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी की ही नहीं। सही कह वो रही सारी के ऊपर पानी फेर देती है और न शोहर की नाफरमानी कर देती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि तुम अपने शोहरों की नाफरमानी करती हो, और तुम यानी कि वो गिबत का शायद था, क्योंकि वो औरतों की तादाद ज्यादा जहन्नम में देखी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात, और औरतों को खास कर मुखातिब करके आके उनके हिस्से में आके मुखातिब करके फरमाया था, नसीहत की थी। कई दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को भी, अकेलियों को भी नसीहत करते थे और मर्दों अकेलों को भी करते थे। कई दफ़ा इकट्ठी ही सबको। तो कि तुम सदका ज़्यादा दिया करो, क्योंकि तुम औरतों की ज़्यादा तुम्हारी तादाद मैंने ज़्यादा जहन्नम में देखी है। हूँ। क्योंकि वजह भी फिर वो एक औरत ने, ज़ाहिर है वो हमारे जैसी तो थोड़ी थी, उन्होंने फ़ौरन कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वजह से? हम्म, कौन-सी वजह है? यानी कि वो वजह बताएँ ताकि हम अपने आप को ठीक कर सकें। तो फिर सदका जो है औरतों, हमें बल्कि सदका देने का ज़्यादा हुक्म दिया गया है औरतों को। तो हम फिर देना चाहिए। जी हुँ? बिल्कुल हमें तो हर रोज़ निकालना चाहिए। हम हर रोज़ अवा-तवा कर जाती हैं। सही। हुँ? तो इसलिए जितना भी निकाला जाए, फ्यू पाउंड ही सही, 1 पाउंड नहीं, फ्यू पेनी सही, कुछ रुपए, 10 रुपए ही सही, बहुत सही। सारे नहीं। है ना? तो जितने भी हों, तो हम उनको अलग-अलग इकट्ठे करके भी रख सकते हैं, और जब ज़्यादा तरह हो जाएँ तो किसी को दे दें, है ना? अगर सदका जारिया भी कर सकते हैं आप, है ना? कि वही सदका जो है, सदका तो सदका ही है ना? तो सदका जारिया भी कर सकते हैं कि अ, जारी रहे भी। इस तरह से मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प करते हैं, जैसे मंथली बेसिस पे देते हैं, हुँ, पता हुँ। है कि ये लोग इनके गुजारा नहीं हो रहा, हाँ जी, हाँ आप जी। वो आपको चीट करते हैं, शदीद वाला इस तरह से
کہ بتاتے بھی نہیں اور بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں. کیسا آپ نقصان آپ کا کیسے کر دیتے ہیں جب آپ دیتے ہیں ان کو منتھلی تو نقصان کیسے کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. نقصان ایسے سسٹر آپ ایسے ہی سمجھے کہ ان کو کوئی کام کہا ہے، ایک بگ اماؤنٹ دی ہے کہ یہ یہاں پہ جمع کروا ٹھیک دو، ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. وہ انہوں نے نہیں کروائی اور تقریباً 1 سال بعد پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا ہے. ہاں وہ تو چیٹنگ واقعی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر جب ایسا کرتے ہیں تو اس انسان کو ذریعے نہ دیا جائے پھر نا. نہیں سسٹر وہ سیم ہی پرسن ہے، تو میں اصل میں یہ بات پوچھ رہی ہوں. اب ہم غصے میں آ کے ان کی جو فائنینشیل ہیلپ ہے اس کو روکیں، تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں ایک نہیں 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 ان کو یہ وہ بتانا. بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ جی بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی جب انہوں نے فائنینشیل ہیلپ روک دی تھی اپنے جی جی خالہ زاد بھائی تھا جب مستا جو تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ یعنی ابوبکر کی بیٹی ہی تو تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی تو جی جب ان پر الزام لگا تھا وہ جو ہار افق کا واقعہ تھا جی جی اس کے بارے میں، تو اس نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، وہ بھی جی مدینے میں مشہور کرنے میں ساتھ لگ گیا تھا. تو اللہ کے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فائنینشل ان کی فیملی کی ہیلپ کیا کرتے تھے پہلے، ان صحیح. کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا گھر کا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آج سے یعنی اس نے میرے گھر والا ہو کے میرا اتنا احسان ہے اس کے اوپر، اور اس نے ایسا کیا میری بیٹی کے میری گھر کی طرف میری عزت کی طرف اس نے بھی نہیں کچھ سوچا کہ بھی یہ ہاں میں ہاں نہ ملائے ہے نا، ہاں جی تو یہ مدینے میں مشہور نہ کرے، میری عزت کو بکھیر رہا ہے. تو اور اس کی ماں نے ہی بتایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کہ میرا بیٹا ماں نے بددعا دی بیٹے کو، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تو ماں ہو کر بیٹے کو بددعا دیتی ہے. تو حیرانگی اختیار کی تو کہنے لگی کہ بیٹی تجھے نہیں پتا کہ تیرے بارے میں سارے مدینے میں کیا ہو رہا ہے اور میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہے. ہوں. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم کھاتی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار دی کہ جو تم میں سے صاحب استطاعت ہے، جو مالدار ہے، وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے اس لیے نا ہاتھ کھینچ لے کہ وہ یعنی کہ انہوں نے تو کوئی تکلیف دی، وہ اب میرے سامنے ہے نہیں ہے بالکل صحیح. آیت کا بالکل ترجمہ، کہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں کر دینا ہاتھ پیچھے کھینچ لینا کیونکہ انہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے کوئی، صحیح. سسٹر میں بلکہ تو نا حضرت ہوں یہی سوچ رہی تھی کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے، کہہ بھی ان کو تھوڑا سا بتا دیا جائے کہ ہمیں وہ دیکھو نا وہ میں مطلب ایسے پیار سے بتا دیا جائے اور انہیں پتا چلے، اگر نہیں پیار سے بھی آپ نے بتانا انہیں کلیئر بتا دیا جائے کیونکہ چیٹنگ ہوئی ہے نا، تو انہیں جی بتا دیا جائے کہ دیکھو کلیئر ہم بتا دیا. ہاں جی کلیئر بتا دیا ہے. تو کلیئر پھر بتا دیا ہے تو پھر یہ ہے کہ مدد نہ روکیں، ٹھیک ان کی مدد نہ روکیں، صحیح ہو گیا. دوسروں کے لیے انہیں نہ دیں دوبارہ. جی اب تو دوسروں کے لیے بھی چکرنے ہو جائیں گے کہ انہیں پتا چل گیا کہ ہم نے نہیں دیے تھے، صحیح ہے صحیح. نا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ ان پہ آپ ٹرسٹ ظاہر ہے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے نا ٹرسٹ انسان کا، ختم ہو گیا نا، تو میں یہ ختم کہہ ہو. رہی ہوں کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اس غلطی ہم نے یہ غلطی کی ہے تو وہ کہ بتانے سے ہے نا، بتانے سے اچھا ٹھیک ہے. بتایا جائے گا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں اتر آئیں تو کیا جی مستے کو نہیں پتا چلا، پتا ہوں. چلا نا جی جی ٹھیک. کہ بھی اس نے یہ کیا تو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا نا. تو پھر جو جن مسلمانوں نے ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حفصہ کی بہن بھی تھی جی ساتھ میں، وہ اس نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، ہاں جس جی نے ہاں میں ہاں بھی ملا دی جی وہ اس کی بھی پکڑ ہے. آج بھی یہی ہے قانون اللہ کا، آج بھی یہی ہے بالکل. کہ جس نے کسی پاک دامن بھولی والی عورت پر الزام تراشی کی، اس پر زنا کا الزام لگایا، اور جس نے اس میں شامل ہوئے وہ سب وہ سزا کے حقدار ہیں اگر وہ 4 گواہ چشمے دید گواہ نہ لا سکے. ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ کا قانون.
तो हम आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह खत्म करते हैं इसको। जी, जी। जहाँ पे चैप्टर खत्म होता है तो ज़रूर हम रिश्तेदार या जो भी है जिसकी हेल्प कर रहे हैं उसकी अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता फरमाए जी, ठीक कि, इंशाल्लाह। है ना, कि कभी वो उन उनसे फिर ये जिताए ना, एक दफा उनको बता दिया है फिर बार बार नहीं जिताना कि हम आपकी है, क्योंकि जाहिर है जब हम फाइनेंशियली किसी की हेल्प करते हैं और उसको जिता देते हैं तो वो हमारा बदला खत्म हो जाता है जिताने से। सही कह रही हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा अजर खत्म कर देते, क्योंकि हमने जिता दिया, शो ऑफ कर दिया, जा जी। जिता दिया, जा उनको एहसान जता दिया। ये एहसान होता है ना, कि मैं तुझ पर एहसान कर रही हूँ और तूने मेरे साथ ये चीटिंग की, है ना। सिस्टर फीलिंग यही आई थी कि हम मतलब हुद-बुहद कर रहे हैं और हम 1 साल से ढूँढ रहे हैं कि ये पैसे कहाँ गए, तो ये बता नहीं रहे हैं। तो इस तरह हाँ, जब तो फिर अगर गुस्सा तो आया होगा ना, जी, जी। लेकिन ये है कि उन्हें अब ये फिर अब लेकिन अगर उन्हें आपको पता चला, दूसरों के हाथों पता चला कि उन्होंने क्या किया है माल के जी, साथ, या जी। उनके हाथों पता चला, किससे पता चला? दूसरों से सिस्टर दूसरों से। इंक्वायरी करवाई ना, बैंक में करवाने के लिए दिए थे, तो वो पता ही नहीं चला। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। इंक्वायरी करवाई तो पता चला कि वो तो उन्होंने इस तरह अपने अकाउंट में करवा लिए हुए थे। हाँ, ये तो हमारे लोगों का शेवा है कि उन्होंने धोखा करना ही होता तो है। वो फिर शदीद किस्म का ना रिएक्शन शो हाँ, हुआ। ज़ाहिर है कि अपना माल गया होता है इंसान का, जी, तो अपना माल सब गया होता है ना सबसे फिर। ज़्यादा ये कि मैं 1 साल से ढूँढ रहा हूँ, तो वो बता नहीं रहे कि चलो ज़रूरत थी, आप लोगों ने कर लिया ऐसे। वत बता ये दे भी कह सकते हैं, हाँ, कह सकते थे कि देखो जो पैसे आपने दिए थे हमने खर्च कर लिए, हम दे हाँ, देंगे। दे देंगे या ऐसे हो गया है। तो हाँ, वो परेशान था, तो ऐसे लोगों अल्लाह के ताला साथ परेशानी दूर करे। बस यही है, हमारे लोगों ने ईमान जो है ना बहुत सस्ता किया हुआ है। जी, जी। ईमान बहुत सस्ता कर लिया। ईमान को तो कौड़ियाँ भी नहीं लेते, कौड़ियों से भी वो कहते हैं गली के जो तिनके होते हैं ना उनके बराबर भी नहीं रखा ईमान को आज हाँ, हम मुसलमानों में से किसी ने, सब कुछ लोगों सही ने। कह रही हैं, बिल्कुल सही है कि है ना? अल्लाह पे तवक्कल हो तो वो खुद रास्ते निकालता है, वो तो हाँ, किसी अगर वो कहते आप लोगों को कहते कि देखें भी हमें वो पैसे जमा आपके करवा देते। हाँ ठीक है? जी। पैसे जमा करवा देते और आपसे कहते कि देखो हमें ना इस इतने पैसों की बहुत अशद ज़रूरत है, जी, और जी। उधार माँग सकता है हाँ इंसान, जी, हाँ जी, बिल्कुल, है ना? कि हमें बहुत ज़रूरत है तो आप हमारी मदद कर दें। तो सही है, आप हो सकता है कि कह देते कि चलो बैंक में हमारे पैसे हैं वो निकलवा लें, सही है। तो जब फिर होंगे तो आप डाल दें बीच में, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही था कि बता हाँ। देते हम परेशान ना होते। हाँ, तो वो फिर उनको ये कह सकते हैं कि देखो आपने हमें बताया नहीं, इतनी परेशानी उठानी पड़ी, तो अच्छी बात थी कि आप हमें पूछ तो लेते, सही, सही। बता तो देते, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तो यानी कि ज़्यादती है ना हमारे साथ कि हमें इतनी परेशानी पूरा साल रही, है ना? सही, बिल्कुल इंसल्टिंग इस तरह से बोला हमें इतना बेवकूफ़ समझा है कि हम हुँ। कह रहे हैं कि ये पता करो कहाँ गए यहाँ से उन्हीं ही से कह रहे हैं कि पता करो। पता करो उन्हीं से ही कह रहे हैं। उन्हीं से कह रहे हैं पता करो, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो वही है, ज़ाहिर है कि उन्होंने कहाँ बताना था। आज वही है कि फिर अब बेवकूफ़ी के वो इन्हें क्या सा पता है कौन झूठ साल सामने क्या आ तो पता। जाता है ना सिस्टर चाहे साल लगा या अरसा लगे तो वो झूठ सच पता चल जाता है। सच पता चल जाता है। अल्लाह सुब्हाना बिल्कुल, तआला तौफ़ीक अता फ़रमाए हम सबको। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व आमीन। जी हम भी बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह ताला हम बहुत कमज़ोर हैं। अल्लाह ताला तेरे अहकामात जो हैं जो आसानी कर दे उनके लिए, उनके ऊपर अमल करने के लिए। ऐ अल्लाह आमीन। ताला हमें दरगुज़र करने वालों में से कर दे। ऐ अल्लाह ताला तेरी रज़ा हमें चाहिए। ऐ अल्लाह हमें तेरा गज़ब और गुस्सा नहीं चाहिए। ऐ अल्लाह ताला तू भी हमें बेहतर इनाम देना राज़ी होकर हमारे गुस्सा पी जाने की वजह से। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाना। अल्लाह हमें ऐसे लोगों का सामना ही ना देना जो हमें गुस्सा दिलाएँ।
अल्लाह आमीन सुबहाना ताला हमारी औलादों को भी हिदायत अता फरमा दे। अगर हमारी आमीन औलादों के हक में, हमारे किसी बहन भाई के हक में हमारी तरफ से कोई जुल्म ज्यादती हुई है, कोई बददुआ निकली है मुंह से, कोई कुछ हुआ है, तो अल्लाह हमें माफ फरमा दे, उन्हें उनके ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमा, आमीन उनके ऊपर अपनी नेमतों को निशावर फरमा। अल्लाह सुबहाना ताला उन्हें अपने मोहताज रख, हमारे मोहताज बंदों के मोहताज ना कर। आमीन आमीन ऐ अल्लाह हर बंदे को अपना मोहताज रख, तेरे मोहताज तो शाह भी हैं और फकीर भी हैं। ऐ अल्लाह जी सुबहाना ताला बस अपना ही मोहताज रखना, किसी बंदे की मोहताजी ना देना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हमारे आमीन माँ बाप को भी किसी की मोहताजी ना देना अल्लाह, आमीन हमारे माँ बाप को भी अपने मोहताज ही रखना। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप में से जो जिंदा है उनकी तू हिफाजत फरमा, उनको बीमारियों से निजात दे, उनका बुढ़ापा उनके लिए आसान कर दे, उनकी तकलीफें दूर कर दे। अल्लाह सुबहाना ताला जो जो तकलीफ में है अल्लाह ताला उनकी तकलीफें दूर कर दे। अल्लाह जो हमारे वालिदैन में से चले गए हैं दुनिया से, अल्लाह उनकी मगफरत फरमा दे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमा दे, उनके दर्जात बुलंद कर दे, उनकी कब्रों को रोशन कर दे। अल्लाह उनकी कब्रों में जन्नत की खिड़कियां खोल दे। अल्लाह उनको अपना दीदार देना जन्नत में। अल्लाह उनके आला मकाम देना, उन्हें उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम देना। अल्लाह तू उनसे राजी हो जा। अल्लाह उन्हें तकलीफों से बचा जो आगे मिल रही हैं, मिली हूँ को ही। अल्लाह उन्हें अल्लाह ताला जो इंसान होने के नाते उनसे कोई गलतियां कमियां कोताहियां हुई हूँ, हमारे वालदैन को और हमारे अजीजों कारब की मगफरत फरमा दे, उन्हें दरगुजर उनसे फरमा दे। अल्लाह तू बेहतरीन दरगुजर करने वाला है। अल्लाह ताला या अफुवन गफूर, या अफुवन गफूर, या अफुवन गफूर, इगफिर लना, इगफिर ली, फागफिर लना, फागफिर लना। आमीन या आमीन अल्लाह हम सबको बख्श दे, हम सब पे ऊपर ही अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अंसुरना वली इख्वानिना अल्लज़ीना अलमुजाहिदीन फी सबीलिल्लाहि वल फुक़राइ वल मसाकीन फी अर्दिल फ़लस्तीन व फी कुल्ली मकान। आमीन या रहमान या रहीम आमीन। हमारे वतन पाकिस्तान पे और जिस वतन में हम रहते हैं इस पे भी अपनी हिफाजत फरमा, आमीन रहमत नाज़िल फरमाए। इस वतन के सारे इंसानों को सिराते मुस्तकीम दे दे। आमीन ऐ अल्लाह ताला हम बहुत कमजोर हैं, हम इन तक पैगाम पहुंचा नहीं रही तेरा। ऐ अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला बेहतर फरमा, हमारे दिमाग में हमारी हिम्मत हमें दे के हम इन तक तेरा पैगाम पहुंचा। ऐ अल्लाह कहीं जे क़यामत के दिन हमारे गिरेबान ना पकड़े। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे वतन पाकिस्तान में जहाँ पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पे जो अल्लाह ताला मुल्क हासिल किया था, मुल्क के क्या टुकड़े हो गए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उस मुल्क की हिफाजत फरमा, उसके रहने वालों की हिफाजत फरमा, उसके रहने वालों को सुकून अता फरमा, चैन अता फरमा, आराम अता फरमा। अल्लाह सुब्हाना ताला उसके रहने वालों की जो अल्लाह ताला हुक्मरान है उनको अच्छे हुक्मरान दे। अल्लाह उनके दिल बदल दे, उनके हुक्मरानों के दिल बदल दे। आमीन अल्लाह सबको फेर कर दीन इस्लाम पर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तू करने वाला है, अल्लाह तू करने वाला है। हमारी औलादों को ता क़यामत आने वाली नस्लों को अपने दीन पर कायम रखना, अपने दीन पर लगाना और उस पर कायम रखना। हमारी नस्लों में से भी अल्लाह उनसे भी अपने दीन के काम ले लेना, अपने सिपाही बनाना, शैतान के अल्लाह ताला सिपाही ना बनाना बनने देना। अल्लाह ताला शैतान की महफिल से बचाना उन्हें। अल्लाह ताला तू अपनी महफिलों में उन्हें जगह दे। अल्लाह ताला तू अपने लिए अपनी खिदमत गुजारी के लिए, अपने दीन की खिदमत के लिए उनको भी चुन ले, हमें भी चुन ले। अल्लाह हम चाहे ना चाहे अपने दीन के काम हमसे ले ले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।